हेलो एवरीवन, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ +2 ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ। ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ। ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ मतलब ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ 50% ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਗੀ ਤੇ 50% ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਫਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 50% ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਧਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ AT ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ T, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, AT ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, that will be equal to A naught by 2। ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਾਫ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ A naught ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਫ, that will be equal to the AT। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫॉर ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ A naught minus AT is equal to ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ KT, ਇਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ AT ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ T ਹਾਫ ਲੈ ਰਹੇ। T ਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ AT ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਫਟਰ ਟਾਈਮ T ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, A naught minus A naught by 2 is equal to K T ਹਾਫ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਈਏ, 2 ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2A naught minus A naught is equal to K T ਹਾਫ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, A naught by 2, ਇਹ ਜਿਹੜਾ K ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਓਵਰ ਲਿਆਵਾਂ, this is the T ਹਾਫ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ T ਹਾਫ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਫॉर ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ that is directly proportional to the concentration of the reactant। A ਨੋਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ T ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ, ਕੀ ਹੈ A ਨੋਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ T ਹਾਫ वर्सेस A नोट, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ A ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ T ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ, ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਲਈ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, T ਹਾਫ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ln A naught by AT is equal to K T ਹਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, AT ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਐਟ ਟਾਈਮ T ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਟਾਈਮ T ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ln A naught ਇੰਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 is equal to K T ਹਾਫ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲੌਗ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੌਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2.303, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2.303 log 2 is equal to ਕੀ ਆ ਗਿਆ K T ਹਾਫ। log 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0.3010, log 2 is equal to ਕੀ ਹੈ 0.3010। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ 2.303 into 0.3010 is equal to ਕੀ ਆ ਗਿਆ K T ਹਾਫ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ T ਹਾਫ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 0.693 over K is equal to T ਹਾਫ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ T ਹਾਫ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਨੋਟ ਟਰਮ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ T ਹਾਫ
ਤੇ ए नोड ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ टी ਹਾਫ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੀ ए नोड ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ टी ਹਾਫ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਲਈ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਲਈ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਫॉर ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/at minus 1/a0 is equal to kt ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ at ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ a0/2 ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/a0 into ਕੀ ऊपर की आ गया 2 minus 1/a0 is equal to ਕੀ ਆ ਗਿਆ kt हाफ यही चीज आ गई तो इत्थे की मेरे को बन गया 1/a0 तो ये जेड़ा k है इत्थे नीचे आ जाएगा k is equal to की आ गया t हाफ इस टर्म दे विच भी सेकंड ऑर्डर दे केस दे विच भी जेड़ा t हाफ है वो a0 दी वैल्यू ते की कर रहा है डिपेंड कर रहा है लेकिन वो की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जीरो ऑर्डर दे केस दे विच जेड़ा t हाफ सी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीगा a0 दे ते फर्स्ट ऑर्डर दे विच तां वो डिपेंड ही नहीं कर रहा ते सेकंड ऑर्डर दे केस दे विच की है t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द a0 तां इत्थे मैं ग्राफ किदे प्लॉट करदी हां टी हाफ वर्सिस की करनी है 1/a0 की कितना 1/a0 कल्ले a0 दे नहीं कर रही मैं जिवें जीरो ऑर्डर दे विच तां आपां की कीता सीगा टी हाफ वर्सिस a0 कीता सी जेड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया सी ते हुण इत्थे 1/a0 दे कर रही है तां वो की होएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तां ए ग्राफ आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड दा इन केस ऑफ द सेकंड ऑर्डर ठीक है तो इत्थों एक आपां डायरेक्ट भी अपने कोले एक्सप्रेशन आंदा है टी हाफ लाइफ दा की आंदा हैगा डायरेक्ट एक्सप्रेशन दसदे हैं कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए नोट दी कंसंट्रेशन इत्थे की लिख देनी है मैं n-1 इस फार्मूले तो आप डायरेक्टली कट सकते हैं कि जीरो ऑर्डर की करता है ए नोट ते डायरेक्टली डिपेंड करता है मतलब जे मैं इत्थे n दी वैल्यू किन्नी पुट करा जीरो जीरो ऑर्डर ली है ताकि ए की बन जाएगा टी हाफ इत्थे की बन जाएगा अपने को 1/a0 दा किन्ना बन जाएगा -1 फिर मैनू की करांगी ऊपर लै जांगी -1 है तो की होएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर लेकिन जे मैं n दी वैल्यू 1 कर दी है तो 1 - 1 की हो गया 0 तो ये वाली टर्म अपनी की हो जाएगी खत्म हो जाएगी तो टी हाफ इन केस ऑफ फर्स्ट पीरियड उते डिपेंड ही नहीं कर रहा ए नोट ते लेकिन जे मैं n दी वैल्यू 2 पुट कर दी है तो मेरे को इत्थे की बनता है a0 2 - 1 दैट इज द -1 तो टी हाफ की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए नोट इज इट क्लियर चलो ये सी अपना हाफ लाइफ पीरियड की गल सीगी हुण आपां की करदे हैगे आ थोड़ी जी ग्राफ करते हैं आपां जीरो ऑर्डर ली फर्स्ट ऑर्डर ली ते सेकंड ऑर्डर ली किहड़े ग्राफ करने आपां ये तां हाफ लाइफ पीरियड दे ग्राफ कीते सीगे हुण आपां ग्राफ करदे आ जीरो ऑर्डर ली केड़ा केड़ा ग्राफ करना आपां जीरो ऑर्डर ली मेरे को एक्सप्रेशन की हैगा a0 माइनस at इज इक्वल टू की है kt है ना तो इत्थे जेड़ा मैं ग्राफ प्लॉट करांगी किदे वर्सिस करना है मैं ग्राफ at वर्सिस t करना ठीक है तो पहला की करा मैं इनू केड़ी टर्म दे विच लिख ला y इज इक्वल टू mx प्लस c किवें करा मैं इनू at नू उधर लै जावां a2 नू उधर लै गई ते kt नू इधर ले तो माइनस kt प्लस a0 इज इक्वल टू की आ गया मेरे को इज इक्वल टू कि हो गया ए टी यही चीज बनी की बन गई ए कि इक्वलेंट हो गया वाई दे ए कि हो गया टी दे एम की है मेरी इत्थे एम इज द स्लोप एम की है स्लोप तो स्लोप मेरे कि इक्वल आ गई माइनस के एंड दिस इज द इंटरसेप्ट ए की है इंटरसेप्ट तो इंटरसेप्ट की वैल्यू मेरे को की आ गई here is the intercept is the a0 ठीक है मैनू केड़ी टर्म दे विच लिख लिया y is equal to mx plus c मैं ग्राफ किदे वर्सेस प्लॉट करना है y ते x दे
ਤੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੀ ਸਲੋਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ। ਤਾਂ y ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੇ 80 ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਰਸਸ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਲੋਪ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਸਲੋਪ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ -k ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈਗਾ a ਨੋਡ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ ਫॉर ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ फर्स्ट ऑर्डर ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ln a0/t = kt ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ln ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ log ਲੈ ਲਈਏ 2.303 log a0/at = ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ kt। ਤਾਂ 2.303 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ log a0/at = kt/2.303 ਤਾਂ log a0 - at ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ log a0 - log at = ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ kt/2.303। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਦੇ ਵਰਸਸ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ log at ਵਰਸਸ t ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ y = mx + c। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ -kt/2.303 ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ log a0 = ਕੀ ਆ ਗਿਆ log at ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ y = mx + c y ਤੇ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਮੇਰੀ ਸਲੋਪ this is the slope ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ -k/2.303 is the slope ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ c ਹੈ that is the log a0। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ log at versus ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ t ਟਾਈਮ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਸਲੋਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ -k/2.303 ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ log a0। this is the graph for the first order is it clear। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ for second order ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/at - 1/a0 = ਕੀ ਸੀਗਾ kt ਇਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਦੇ ਵਰਸਸ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ this ਵਰਸਸ this ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜੀ ਕੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜੂਗੀ 1/at = kt + 1/a0 आ गई देखो इक्वेशन y = mx + c ये y हो गया t हो गया दिस इज द स्लोप की है हुन प्लस k आएगी पहला की आ रही सी अपनी माइनस आ रही सी एंड दिस इज द इंटरसेप्ट c दी वैल्यू इंटरसेप्ट तो इत्थे ग्राफ की बनेगा अपना 1/at एंड टाइम स्लोप हैगी अपनी स्लोप की है पॉजिटिव है ते नाल की है इंटरसेप्ट दिस इज द इंटरसेप्ट दी वैल्यू की है 1/a0 स्लोप अपनी की हैगी है पॉजिटिव हैगी है स्लोप दी वैल्यू की हैगी है स्लोप इज इक्वल टू +k दिस इज द ग्राफ फॉर द सेकंड ऑर्डर इज इट क्लियर। चलो ये तो अपना हो गया जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ते सेकंड ऑर्डर। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਊਡੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਿਊਡੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਿਊਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਫਾਲਸ ਆਰਡਰ मतलब कि वो रिएक्शन अपनी की होएगी हायर ऑर्डर दी होएगी रिएक्शन एक्चुअल से तो की होएगा ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ
हाई होएगा, जिवें 3 या 2 होएगा, लेकिन वो कुछ कंडीशनस है लग जाती है कि वो किदे विच कन्वर्ट हो जाती है, लोअर ऑर्डर दे विच। हायर ऑर्डर तो की हो गया लोअर ऑर्डर, लोअर एक्चुअल जो हायर ऑर्डर दी सी, लेकिन वो बन की गई लोअर ऑर्डर दी बन गई। यदि एग्जाम्पल आप डिस्कस करते हैं अपने को की है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, की है हाइड्रोलिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। कि एग्जाम्पल है ये बेटा, स्यूडो, स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो मीन्स फॉल्स। एक्चुअल से हायर ऑर्डर की रिएक्शन होगी, लेकिन आप इनू डिस्कस किदे विच करांगे, लोअर ऑर्डर दे विच डिस्कस करांगे। की है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मैं एग्जाम्पल लिख लैनी है CH3 COO C2H5, दिस इज द एस्टर। एक ही है एस्टर है, नाल मैं दे विच की पाया, वाटर पाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अपने को की बनता है एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस एल्कोहल, प्लस एल्कोहल। ठीक है, तो इनू आप की अज्यूम कर लिया एलीमेंटरी रिएक्शन। केड़ी रिएक्शन? एलीमेंटरी रिएक्शन, जिहदे विच रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट दी आपां तां दैट इज द रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन की आएगी अपनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट दी एक तो एस्टर है ते नाल की हो जाएगा वाटर। ठीक है, तो जेड़ा इहदा स्टॉकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होएगा वही की बनता हुंदा अपना ऑर्डर बनता हुंदा है। ये आपां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर एलीमेंटरी रिएक्शन लिए आपां रेट लॉ इक्वेशन किवें लिखदे हैं। क्लियर? तो हुण इत्थे अपने कोले देखो गैस करो कि ऑर्डर कितना बनता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बन रहा अपने कोले, एक्चुअल च की बन रहा ऑर्डर 2 बन रहा है, 2 ही बन रहा ना, 1 + 1 2 बन गया। लेकिन इत्थे की है वाटर दी कंसंट्रेशन, जिहड़ी वाटर दी अमाउंट है वो आपां की लै लैने आ एक्सेस दे विच, इन्नी ज्यादा लै लैने कि थोड़ा बहुत अगर चेंज करिए तो रेट ते कोई भी इफेक्ट नहीं पैंदा। तो इहदी जिहड़ी अमाउंट है इहनूं आपां की मान लैने आ कांस्टेंट, इहनूं की मान लिया कांस्टेंट। हुण अपने कोल इत्थे 2 कांस्टेंट हो गए, एक तो ये वाला हो गया, एक ये। इहदी दोनों की जगह ते मैं की पुट करदा, दैट इज द K डैश, K डैश, K डैश किहदे इक्वल हो गया, दैट इज द कांस्टेंट K ते नाल की हो गया कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो रेट अपना की हो गया K डैश इनटू द कंसंट्रेशन कल्ली किहदी आ गई, एस्टर दी, किहदी आ गई, एस्टर दी। ते ये की है, दैट इज द 1। तो हुण एज दे अकॉर्डिंग जेड़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी 1। रिएक्शन एक्चुअल च की सी सैकेंड ऑर्डर दी, लेकिन एदे करके की बन गई हुण ओह फर्स्ट ऑर्डर दी बन गई, लोअर ऑर्डर दी बन गई। तां करके जेड़ा रिएक्शन दा नाम हैगा वो की हैगा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हैगा। ठीक है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन दी एक होर एग्जांपल हैगी है, वो हैगी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, वो हैगी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हैगी है। तां ओहदे विच की हुंदा हैगा अपने कोले C12H22O11, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪਾਣੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਲਾ ਲੈਣੇ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਊਡੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕੈਟਲਿਸਟ on the rate of reaction. Next topic is the effect of the catalyst on the rate of reaction. की है बहुत ही इजी टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। की होएगा दे विच कैटलिस्ट ने की करना है, जेड़ा रिएक्शन दा रेट है वो की कर देना, इनक्रीज कर देना। की करना है, रिएक्शन दा जेड़ा रेट है वो की कर देगा इनक्रीज। एवें किवें कर देगा, तो वो रिएक्शन नूं की करदा एक अल्टरनेट पाथ दे दिंदा है, एक होर पाथ नवां रस्ता लभ दिंदा है, जिहदे विच आपां नूं एक्टिवेशन एनर्जी दी घट लोड़ हुंदी है। एक्टिवेशन एनर्जी दी जिहड़ी रिक्वायरमेंट है वो की हो जांदी है, लैस हो जांदी है। हुंदा की हैगा देखो,
ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। रिएक्टेंट को लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हैगी है, लेकिन इन्हें की करना है रिएक्टेंट तो की बनाना है प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट तो की करना है प्रोडक्ट बनाना है। तो रिएक्टेंट ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, रिएक्टेंट ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ H2 plus I2 ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 molecules of HI ਬਣਾ ਰਿਹਾ, 2 molecules of HI ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ HH ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਾਂ II ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बनना शुरू होएगा। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट जो कंबाइन कोलिजन होगी तो ये बनेगा इंटरमीडिएट बनेगा, दैट इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उस तो बाद की बनेगा अपना प्रोडक्ट बनेगा। ਜਿਹੜਾ इंटरमीडिएट है वो की ਹੁੰਦਾ अनस्टेबल ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ टाइम पीरियड की ਹੁੰਦਾ शॉर्ट ਹੁੰਦਾ, बहुत शॉर्ट टाइम ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। रिएक्टेंट तो बाद की बनेगा एक्टिवेटेड, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਲੋਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਥ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ देखो हुण रिएक्शन का रूट बदल गया ए, तां हुण जिहड़ी एक्टिवेशन एनर्जी है ए सी एक्टिवेशन एनर्जी 2 ए की हैगी है 1। तो दसो किहदा मैग्नीट्यूड ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी 1 और 2। 1 दा की सी ज्यादा सीगा, लेकिन हुण एक्टिवेशन एनर्जी जिहड़ी 2 हैगी वो की हैगी है घट हैगी है, जिहदे करके अपना रिएक्शन का रेट की हो जाता है इनक्रीज हो जाता है, जिहदे करके रिएक्शन का रेट की हो गया अपना इनक्रीज हो गया। एक इंपॉर्टेंट गल जिहड़ा है अपना कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की करता है डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नू यह चेंज नहीं करता। किनू नहीं चेंज करता ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नू चेंज नहीं करता। क्यों नहीं चेंज करता, जिन्ना रेट इन्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन का इनक्रीज किया इनहांस किया उन्ना रेट ही बैकवर्ड डायरेक्शन का की करेगा इनहांस कर देगा। इट कैटलाइज द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन टू द सेम एक्सटेंट। दोनों का रेट की होएगा सेम एक्सटेंट ते की होएगा इनक्रीज होएगा, जिहदे करके अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता हैगा। ठीक है, ਇਹਦੇ ਤੇ अपना क्वेश्चन बन जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ते कि कैटालिस्ट की करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नु चेंज नहीं करता हैगा। हो गया क्लियर। उस तो बाद नेक्स्ट टॉपिक आप करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द आर्हीनियस इक्वेशन। की करना है आप आर्हीनियस इक्वेशन करनी हैगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेड़ा रेट कांस्टेंट है की है रेट कांस्टेंट जिन्हों आप के नाल डिनोट करते हैं रेट कांस्टेंट वो किहदे ते डिपेंड करता है कल्ला टेम्परेचर ते डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। तो अपने टॉपिक का नाम की है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट ठीक है की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ अगर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ अगर ਆਪਾਂ 10 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਈ 10 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਨੀਅਰਲੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
नियरली की हो जाएगा, डबल हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय कितना 10 डिग्री सेल्सियस। तो जेड़ा ओदा रेट कांस्टेंट है दैट विल बी की हो जाएगा, रेट कांस्टेंट तो की हो जाएगा डबल, नियरली की हो जाएगा डबल हो जाएगा, की हो जाएगा डबल। ये आप डिटेल च डिस्कस करेंगे। तो जेड़ा रेट कांस्टेंट है टैंपरेचर ते डिपेंड करता है, ये सारा ये कंसैप्ट दिता कि नहीं है, कि नहीं एक्सप्लेन किया है, आर्हीनियस कंसैप्ट, आर्हीनियस थ्योरी करांगे, आर्हीनियस थ्योरी, आर्हीनियस ने ये कंसैप्ट दिता है, एनू आपां डिटेल दे विच डिस्कस करांगे। ठीक है, तो हुणे आपां एक गल करके हटे हैं, जेड़ी मान लो की है H2+I2 है ना, सेम वही कितनी हैगी आपां 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI बना रहे हैं। तो H2A दी साडा रिएक्टेंट, सेम जेड़ा आपां पहला डिस्कस करके हटे हैं, जेड़ा की होएगा पहला ये की होएगा बॉन्ड H2 दे विच बॉन्ड ब्रेक होएगा, I2 दे विच भी की होएगा बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होएगा, ऐसी तरह इन्हां दे विच की होएगा बॉन्ड बनना शुरू होएगा। दिस इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, है ना। तो वही चीज होगी, तो अपना की हो गया इत्थे पोटेंशियल एनर्जी, इत्थे की आ गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यही आ गया। एक्टिवेशन एनर्जी इत्थे दसांगे, तो रिएक्टेंट है, इत्थे की है प्रोडक्ट, इत्थे जिहड़ा गैप है दोनों दे विच रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट, इहनूं की कहंदे आ डेल्टा H, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जेड़ी किते डिपेंड करदी है, रिएक्टेंट्स ते प्रोडक्ट्स ते। तो ये अपनी होगी, इत्थे की बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्टेंट ने की बनाउणा हैगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो इत्थे जेड़ी एनर्जी चाहिए उहनूं की कह दांगे आपां एक्टिवेशन एनर्जी। पहला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस तो बाद ही वो एनर्जी थोड़ी रिलीज करके की बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो इत्थे आपां गल करदे हां, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, जेड़ी एनर्जी आपां की करांगे रिएक्टेंट नूं सप्लाई करांगे ताकि वो की बनाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उस तो बाद ही की बनेगा अपना प्रोडक्ट बनेगा। तो इत्थे की कहंदे कि जेड़े मॉलिक्यूल्स हैगे रिएक्टेंट दे, उन्हां सारियां दी एनर्जी की हुंदी है सेम नहीं हुंदी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो की कर रहे एक दूजे दे नाल कोलाइड कर रहे हैगे, एनर्जी की कर रहे ट्रांसफर कर रहे, किसी दी घट रही है किसी दी वध रही है। तो इत्थे की है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी, मॉलिक्यूल्स दे विच की है एनर्जी दी की हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हैगी है। तो इत्थे आपां एक की करदे हैं ग्राफ प्लॉट करदे हैं, ग्राफ प्लॉट करदे हैं, उस ग्राफ नूं की कहंदे आ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। की कह रहे हैं उन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कि आपां हुणे कहा भी सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सेम नहीं होंदी। इत्थे मैं की ले ली एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ले ली, इत्थे की लीता मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इत्थे की ले ली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद गिवन एनर्जी, ये ले ली। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ग्राफ प्लॉट करिए, तो मेरे को ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ। तो इत्थे देखो जी पीक है, दिस इज द पीक, दिस इज द पीक। तो एस पीक ते जी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की है मैक्सिमम, एज दे कोरस्पॉन्ड जी एनर्जी होएगी ओनू की कह रहे हैं आपां मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। की है यह काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस एनर्जी इज पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इत्थे एक मैं पॉइंट लगानी है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला जिहड़ा पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इन्ने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोले की हैगी है एक्टिवेशन एनर्जी हैगी है। तो ये की हैगी है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोले एक्टिवेशन एनर्जी तो की हैगा ज्यादा हैगा। तो इन्हां दा जिहड़ा कुलीन होएगा वो की होएगा इफेक्टिव कुलीन होएगा। इफेक्टिव कुलीन का मतलब कि बनाउणगे प्रोडक्ट बनाउणगे,
ठीक है। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T ਸੀਗਾ, ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਡਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਵ ब्रॉड करती, ब्रॉडन करन दे नाल ब्रॉड कर दी कर्व राइट नो शिफ्ट हो गई। ये कर्व कदों है जो टैंपरेचर की है 10 डिग्री सैलसीयस मैं इनहांस करता। तो देखो म्यू जिहड़ा मोस्ट प्रोबेबल है वो भी वध गया। तो इत्थे जिहड़ी एक्टिवेशन एनर्जी है उहदे विच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पहला नालों की हो गए, पहला नालों की हो गए डबल हो गए। जितना मॉलिक्यूल्स कोले एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हैगी या उस तो वध हैगी है। तो यदा मतलब कि जिहड़ी अपनी इफेक्टिव क्लीन है उन्हां दा नंबर की हो गया डबल हो गया, पहला नालों डबल हो गया। तो अपने प्रोडक्ट्स की होंगे ज़्यादा बनणगे, जल्दी बनणगे, जिहदे करके अपना जिहड़ा रेट ऑफ फ्रिक्शन है वो की हो रहा है डबल हो रहा है। तो आप कहने हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो अपना रेट ऑफ फ्रिक्शन क्यों इंक्रीज करता है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द इफेक्टिव क्लीन। जितने क्लीन वध होंगे उतना ही की होएगा अपना रेट ऑफ फ्रिक्शन की हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। इस ग्राफ तो आपको क्लीयर पता लग जाता है कि जो टैंपरेचर आप 10 डिग्री सैलसीयस बताया तो इत्थे जिहड़े इफेक्टिव क्लीन का नंबर की है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग द इफेक्टिव क्लीन वो की हो रही है अपने डबल हो रही है। क्लीयर। तो चलो हुण आपां की पढ़ते हैं अपना जिहड़ा आर्हीनियस की हैगी है इक्वेशन हैगी उहनूं पढ़ते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। आर्हीनियस इक्वेशन दे विच की है कि दैट इज द आर्हीनियस इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आर्हीनियस इक्वेशन की इक्वेशन है K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। Here K is the rate constant, A is the Arrhenius constant या इनू की कह देंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह देंगे है। प्री एक्सपोनेंट ए नू की कहने आपां Arrhenius constant भी कहने हैं या इनू फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह देंगे। E की अपनी एक्टिवेशन एनर्जी, R की है दैट इज द गैस कांस्टेंट जिहदी वैल्यू आपां की कहने हैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन। T इज द टेंपरेचर, ये अपनी इक्वेशन होंदी हैगी है, ठीक है। तो हुण मैं की करा इहदे विच यही इक्वेशन ले ली, मैं K दी वैल्यू लैनी है एट डिफरेंट टेंपरेचर क्योंकि जो रेट कांस्टेंट है वो किते डिपेंड करता है टेंपरेचर ते। जे मैं टेंपरेचर चेंज करांगी तो रेट कांस्टेंट जो K है उसकी वैल्यू भी की होएगी चेंज होएगी। तो इत्थे मैं कितना टेंपरेचर T1 लिता तो उदों मेरा रेट कांस्टेंट की आया K1 आया। तो इत्थे रेट कांस्टेंट की आया K1 कदों जदों मेरा टेंपरेचर की सीगा T1 सीगा। हुण मैं टेंपरेचर की ले लिया T2 तो रेट कांस्टेंट की हो जाएगा मेरा K2। बस दोनों दे विचों की एक टेंपरेचर चेंज हो रहा है ते नाल की हो रहा है रेट कांस्टेंट, बाकी चीज़ां की हैगियां तुहाडियां कांस्टेंट हैगियां, कल्ले ये दोनों ही वेरी कर रहे हैं। तो हुण मैं की ले लिया K2, KT इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर T2। ये अपनी इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन की है फर्स्ट। तो आप सेकंड इक्वेशन नूं की करता डिवाइड करता बाय 1 दे नाल, 2 बाय की करता आपां 1। तो मेरे को की आ गया K2 बाय K1, ए दे नाल ए की हो जाऊ कैंसल, ए टर्म माइनस 2 गई तो ए की हो जाएगी माइनस माइनस प्लस। तो मेरे को की बन गया माइनस ए बाय आर T1 माइनस ए बाय आर T2, ठीक है। तो मैं हुण इहदा की करा लॉग लेना, एनएल ले लिए
ln K2 ln ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ K2 by K1 ਇਹਦਾ एक्सपोनेंशियल की हो जाएगा खत्म जो मैं ln ले लिया तो की हो जाएगा A by R T1 माइनस A by R T2 तो इथों की बन जाएगा देखो ln K2 by K1 इथों E by R की आ जाएगा कॉमन E by R कॉमन आ गया अंदर की बन गया 1 by T1 माइनस 1 by T2 इथे ln है log ले लिए 2.303 log K2 by K1 इज इक्वल टू E by R इधर की आ गया 1 by T1 माइनस 1 by T2 तो ये 2.303 है मैंने इथे भी लिख सकती है ਇਹਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ भी लिख सकती हूँ ਇੱਥੇ आर हो गया ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2.303 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ एक्सप्रेशन हो गया log K2 by K1 is equal to A over 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2 ये आर्हीनियस इक्वेशन नाल अपने को ये चीज आ गई हैगी है ठीक है नाल हुण आपां की करदे हैगे ग्राफ करदे हैं आपां एक ग्राफ करदे हैं किहदे बेसिस आर्हीनियस इक्वेशन तो ही एक ग्राफ प्लॉट करदे हैं जिहदे नाल फिर अपना ये टॉपिक की हो जाएगा खत्म हो जाएगा ठीक है चलो लास्ट इज द ग्राफ किहदे तो आर्हीनियस इक्वेशन तो ही बनावांगे आपां की हैगा अपने कोले आर्हीनियस इक्वेशन यही हैगी है यही है आपां ग्राफ प्लॉट करना है ln के वर्सेस 1 by t तो ये लिए की करिए ln ले लिए k इज इक्वल टू ln a एक्सपोनेंशियल फैक्टर की हो जाएगा प्लस खत्म हो जाएगा माइनस ऊपर माइनस आ जाएगा माइनस ए बाय आर टी तो ये देखो की हो गया जे ln के दैट इज y mx की फॉर्म च माइनस ए बाय आर टी मतलब 1 बाय आर टी दिस इज एरे वर्सेस प्लॉट करना है mx m स्लोप की होगी माइनस ए बाय आर स्लोप की आ रही है थे अपनी हुन नेगेटिव दे विच आ रही है प्लस अपना की आ गया इंटरसेप्ट दैट इज ln a तो इथे प्लॉट कर देने आप ln k वर्सेस 1 by t स्लोप की अपनी नेगेटिव तो ग्राफ की आएगा ऊपरों की है स्लोप इज द माइनस ए बाय आर ते इंटरसेप्ट दिस इज द इंटरसेप्ट जिहदी वैल्यू की है ln a दिस इज द ग्राफ तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ